Hello. Hello. Am I audible? Hello. I don't know. Yeah. Yeah, you are audible. Okay, okay, sure, sure. So, who has started this meeting and who is the organizer today? Huh? Who is the organizer today? I am here, but mainly Abhinava will like manage during the session. Like I am the organizer, but he will be Mhm. my co-organizer. I am the co-head of Federal Council. So SCS. yeah, Okay, okay. Great. Fine, then I think there's still time, no? yeah. All right, I'll So join let me back. just Uh, what? I'll join back in 5 or 10 minutes. Yeah. No issue, no issue. Yeah, for sure. Okay, 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 okay. Bye bye.
भैया वॉइस आ रही है मेरी सही से? हाँ ठीक। ठीक है ना? कैमरा में सही से दिख रहा है? हाँ ठीक है, मैं वीडियो ऑन रखूंगा ना? वीडियो ऑन रख। ठीक है भैया। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ भैया। नहीं। भैया 7 बजे स्टार्ट करते हैं, अब थोड़ा लोग ज्वाइन हो जाए ऑडियंस। चले चले। और कौन कौन है स्पीकर सिमर के अलावा?
सिमर को तो जानता हूँ मैं। हाय भैया। हेलो, कैसा है भाई? बढ़िया बढ़िया। आप बताओ। बढ़िया यार एकदम। आप बैंगलोर में हैं या फिर हैदराबाद गुड़गांव? मैं नोएडा में हूँ। अभी प्रेजेंटली मैं अपने होम टाउन में हूँ, बट सोनीपत। तू कहाँ है? बैंगलोर? हाँ जी। ओके। आदित्य भी स्पीकर है? म्यूट है। मैं स्पीकर नहीं हूँ, मैं होस्ट हूँ भैया आज की इवनिंग। होस्ट ठीक है, तो कौन है तीसरा स्पीकर? कौन है? तीसरा स्पीकर अक्षुन भैया है केमिकल से। ओके, ऑलराइट, वो भी आपके साथ ही है माइक्रोसॉफ्ट में। ठीक है, नाइस। भैया वो अक्षुन भैया जस्ट ज्वाइन कर ले, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज्वाइन कर लिया है मैंने। आई एम हेयर ऑलरेडी। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 भैया, तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं भैया। हाँ, कूल कूल। ठीक है, बट लोग कितने हैं? 10 ही लोग एक्सपेक्टेड है क्या? कमी है अभी। तो थोड़ा और वेट कर लेते हैं भैया, जस्ट 2-3 मिनट। जस्ट वो आज जो आगमन एंड ऑल सब चल रहा है तो कॉलेज में स्टार्टिंग के टाइम पे, इसीलिए सब थोड़ा उधर ज्यादा है। जस्ट 5-10 मिनट वेट, 5 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। डन डन। थैंक यू भैया।
भैया हम लोग शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके लोग ज्वाइन करते रहेंगे. Let's start. A very good evening to everyone present here. On behalf of the Student Counseling Services and the Career Council, I welcome you to this enlightening session of acing placement for software development. I am Aditya Kumar Das and I am truly delighted to host you today. Are you confused about which career profile you want to choose? Are you having doubts about your chosen profile? Are you confused about what to do for a good career? Don't worry. Takha, the Career Council, is here for all your doubts. The Student Counseling Services (SCS) is a student faculty body which aims at the holistic advancement of students on campus. It has 5 councils and 1 vertical. The 5 councils are the Wellness Council, the Academic Council, the Career Council, the Skill Development Council, and International Exchange. And the vertical is Operation Vertical to manage all the operations of SCS. Now, we have the Career Council, which helps the student on campus to get best career domains and back their dream careers. The Career Council take multiple initiatives, including acing placement sessions that is being done now, the acing internship sessions, the internship diary, the placement diary, the career bootcamp, and AMA sessions. Let's have a quick look at all of them. Acing placements include sessions aiming to help the students ace their placement and back their dream placement through online sessions by seniors who have already aced in their career or aced in their placement. Just like acing placements, we have the acing internships, which also include a series of online sessions that is aimed to clarify among the students regarding interns. These sessions are taken by seniors who have already aced in their interns and want to help their juniors at acing them too. For both internships and placement, students need resources. The intern and placement diary provide these resources as an authentic and verified material. Students can look at them whenever they are in doubt. भैया वॉइस आ रही है ना मेरी सही से? सुनाई दे रहा है, right? The AMA sessions or the Ask Me Anything sessions, these sessions are organized to discuss general topics like how LinkedIn can be effectively used or how a CV can be made more effective or internships and other opportunities. In these sessions, various guest speakers share their experiences and knowledge. Now, I'd like to welcome our seniors, Mr. Akshat Singla from EC, who is currently working in Microsoft, Mr. Akshun Mishra from Chemical, who is currently also working in Microsoft, and Mr. Simarpreet Singh, who is currently in ThoughtSpot. Congratulating them for their excellent achievement, and they will also share some great insights for this session. As we know that we have some common doubts and queries from the students that we have collected. भैया मैं कुछ कुछ मैं क्वेश्चंस आपको बता दूंगा, आप लोग अपने हिसाब से देखना कि कौन सा आप यू कैन पिक द क्वेश्चन एंड आंसर आराम से. So what are the resources used by you during your software development preparation or SD preparation? Okay, Simar, yeah, Akshan, तुम लोग since you are recently placed, so मेरे से तो recent हो at least, so you will have latest resources. Okay. Okay, So Simar will go first, and then I'll share my resources. Yeah, Simar, yeah, you can sure, go भैया, first. sure. like we can do in this format that we can share our own experiences and discuss like क्या सही था क्या गलत था और उसके बाद बता देंगे कि क्या ठीक है. So for me, for DSA, I used to do that Striver sheet A to Z DSA course and 455 problems. I did that twice, thrice, and luckily in my interviews as well, specifically for ThoughtSpot, one question got asked from that. So, like the repetition from that sheet, I felt it was quite high, even in OAs as well. Plus, the point was that everyone had done that sheet. So if you wouldn't be doing that, you would kind of be at a disadvantage. I felt that. Because बाकी सब मतलब अच्छे खासे लोगों के वैसे वाले क्वेश्चंस तो हो ही जाते हैं. एंड इसके अलावा लीड कोड मीडियम्स एंड हार्ड्स की एक शीट हमारे सीनियर से मैंने मांगी थी. तो वो वाली मैं काफी सॉल्व करता था. मतलब हार्ड्स के आसपास मैंने शायद 80 के आसपास सॉल्व किए थे. मीडियम्स तो रैंडम थे तो शायद 100 ही होंगे. तो ऐसा मेरा प्रेप रहता था. मतलब ऐसा ही किया था मैंने डीएस में स्पेसिफिकली. और ऊप्स के लिए मतलब
सारा अगर बताऊँ तो ऊप्स में मेरे को जीएफजी आर्टिकल्स काफी सही लगे थे अपने टाइम पे, मतलब वर्चुअल मेमोरी वगैरह से रिलेटेड उधर बहुत ज्यादा डेप्थ में गए थे, वो बहुत अच्छे थे। और अदरवाइज तो ऊप्स में और कुछ मेरे हिसाब से जरूरत ही नहीं पड़ी थी मुझे, अगर वो कर लिया आर्टिकल्स। इसके अलावा ओएस और डीबीएमएस के लिए मैंने लव बब्बर की वो वीडियोस प्लेलिस्ट देखी थी, अगेन उनमें मेरा मोटा मोटा हो गया था। एंड ओएस के लिए एक वो आती है, 3 इजी पीसेस करके है, स्टेप करके शायद ओ स्टेप करके बुक है, वो कर सकते हैं। बट आई गेस अगर पहले करते तो ज्यादा फायदा रहता, अब टाइम कम है थोड़ा। ये मतलब हाँ, ओएस से रिलेटेड तो मोटा मोटी इतनी प्रेप होती है, इंटरव्यू में भी ये सब आता है प्लस रेज्यूमे। तो रेज्यूमे का आई गेस बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इतना कर लें। जी भैया। Yeah. So I'll go ahead with my stuff. The thing is कि जो सिमर ने बोला almost similar pattern था. And I also used to do मतलब अगर हम resources की बात करेंगे तो I started with 450 DSA sheet and like end to end किया था उसको, followed by contests. Starting में काफी कोड फोर्सेस में देता था, like I used to give a lot of contests on code forces, but by the end of third year या starting of fourth year कह लो, I stopped giving like I only used to give contests, and like I stopped solving questions other than the contest ones in code forces, and I started doing lead code completely. So lead code में again same medium and hard का tag लगा के you can also choose topics, तो topics choose करके and then like you can go ahead with solving all of those questions, because उनसे मतलब better grasp मिलता है हर एक topic का। एंड ऑब्वियसली मतलब सारे के सारे कॉन्टेस्ट देने हैं। आई यूज टू गिव कॉन्टेस्ट थर्ड ईयर से, आई थिंक आई वाज रेगुलर कोड फोर्सेस, लीड कोड, एट कोडर एंड कोड शेफ। बट कोड शेफ में आई वाजंट वेरी रेगुलर, तो बट हाँ बाकी तीनों में आई वाज रेगुलर। तो आई थिंक ये मैंने किया था। एंड नाउ अक्षत भैया, इफ यू कैन गो अहेड। Okay, sure, I'll go ahead. तो for me, मैंने मेजरली इंटर्नशिप के टाइम पे इंटरव्यू बिट ही था मेरे लिए मोस्टली सब कुछ। देन ऊप्स मैंने किया था अब्दुल बरी से। देयर इज अ कोर्स, अब्दुल बरी का कोई एक कोर्स है, काफी डिटेल्ड है, आई फेल्ट वेरी डिटेल्ड, और 3x पे भी चल जाता है वो, सो इट इज फाइन। एंड तो डीबीएमएस, ऑनेस्टली मैंने बहुत ज्यादा डीबीएमएस नहीं किया था, दिस वाज अ सब्जेक्ट आई स्किप्ड कंप्लीटली, बट मैंने बेसिक थोड़ा थोड़ा समझ लिया था, रिलेशनल नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस हल्का फुल्का, सम क्रैश कोर्सेज रैंडम यूट्यूब पे। एंड ओएस वाज लव बबर, आई थिंक आई इवन मेड नोट्स, उसके नोट्स मैंने ले लिए थे, देन मैंने खुद उस पे पूरा स्क्रिबल कर दिया था। और आई थिंक आई फील कि ओएस को रटना पड़ता है, तो 2 बार आप देख सकते हो मे बी प्लेलिस्ट, आई डोंट नो, मतलब सबकी अलग अलग पेस होती है उस केस में, राइट? तो ऑल्सो आई हैव शेयर्ड दिस कोर्स, मैंने जो जो किया था ऑन द चैट, तो इफ यू गाइस वांट टू रेफर तो वो कर सकते हो। एंड बिसाइड्स दैट आई फील कि जो भी ओएस होते थे, तो सभी ओएस, फॉर एग्जांपल जो भी कंपनी आने वाली है, तो उससे पहले उसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस, या फिर आई थिंक पास्ट ईयर तक तो जाना भी नहीं पड़ता था, विद इन द सेम ईयर, विद इन लास्ट 2-3 months जहाँ जहाँ वो कंपनी गई है, एंड व्हाट ऑल क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। या यस, that's it from my side. हाँ मतलब वो पार्ट तो मैं भूल ही गया था कि हम ऐसे हाँ। दूसरे कॉलेजेस से क्वेश्चन वगैरह मांगते थे, वो तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता था ओएस में तो खास। एंड स्पेशली अगर 1-2 दिन पहले ही वहाँ टेस्ट हुआ है ऑफ द सेम कंपनी, तब तो हाई चांसेस हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो जाएं। तो बेटर टू बी एट अ गुड प्लेस इन टर्म्स ऑफ कनेक्शंस। अगर क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो इट विल बी अ बोनस। हाँ वही। और मुझे मतलब जितना याद भैया है, आप लोग कैसे मतलब कांटेक्ट इन लिंक्डइन पे करते थे उन बच्चों को कि जस्ट सेंड, या फिर दोस्त होते थे जो वहीं भेज देते थे? अ, मेरे साथ ऐसा था कि एक ग्रुप ज्वाइन किया था, वहां पे लोग एक्टिव थे, मैं ऐसे रैंडमली डीएम कर देता था। जैसे 23 में से शायद 21-22 आईआईटीज में तो मेरे थे कि हाँ भाई इनसे बात होती है, सिंस उनको भी सवाल चाहिए होते थे, मुझे भी चाहिए होते थे, तो वो हो जाता था। तो ऐसे 1-2 ग्रुप भी अगर तुम्हें मिल जाएंगे तो इट्स अ गुड स्टार्ट, उसके बाद तुम खुद से कर लो।
और व्हाट्सएप पे था Okay, भाई, भैया। लिंक्डइन पे ये सब नहीं था। हाँ लिंक्डइन पे नहीं था, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, एंड आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर वाले टाइम पे डिस्कॉर्ड पे भी सर्वर काफी एक्टिव थे, बट लास्ट ईयर तो टेलीग्राम और इस पे थे, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स तो बन जाते हैं वो अपने आप, लाइक अगर तुम आसपास बात करोगे तो यूल गेट टू नो कि यहाँ ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया, वो कर लिया, एंड देन उसके बाद लोगों से कनेक्ट कर लो डायरेक्टली डीएम पे, जैसा सिमर ने बताया। आई Okay, फील भैया, the next. हाँ, Yeah, मेरे go केस ahead. में Sorry, sir. कैसे था कि या इन माय केस मेरे मोस्टली खुद ही दोस्त थे आसपास आईआईटीज में जितने भी, प्लस मेरे जो कॉलेज के दोस्त थे उनके आपस में दोस्त थे, तो वी मेड अ ग्रुप काइंड ऑफ। तो मुझे ये लगता है कि द कॉमन ग्रुप्स पे सब लोग शेयर नहीं करते हैं मटेरियल समटाइम्स, या वो ऐसा मटेरियल शेयर करते हैं विच इज नॉट काइंड ऑफ, कैसे कहूँ, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव सही वर्ड होगा, है ना? तो द थिंग इज, सपोज आज ही सुबह कहीं पे एग्जाम हुआ है किसी का, ओए हुआ है, एंड उसी के क्वेश्चंस चाहिए, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपके पर्सनल ग्रुप में से ही कोई शेयर करेगा वो, नॉट फ्रॉम द अदर। तो वो एक मेजर थिंग है। अगर आपका अभी भी पर्सनल कोई ग्रुप नहीं है एंड यू थिंक ये चीज आपको इफेक्ट नहीं करेगी, तो भाई सभी करते हैं ये, तो देख लो फिर वो पेस में फर्क पड़ेगा ही ओए की। यस। So भैया, the next question जो सबको डाउट आता है, हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों ने अभी कॉलेज लाइफ खत्म की है, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन? यार प्लेसमेंट टाइप पे ऐसे डिस्ट्रैक्शन नहीं आते, हाँ आई गेस बाकी सब तो यही बोलेंगे। वही, मतलब प्लेसमेंट टाइम पे यही हो जाता है कि आपके साथ वाले भी सबके सब मतलब फोकस्ड ही रहते हैं कि अभी प्लेसमेंट लेनी है टाइप्स, तो मोर और लेस डिस्ट्रैक्शंस तो कम रहते हैं, बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि तुम जितनी भी एनर्जी पढ़ाई में लगा रहे हो वो राइट डायरेक्शन में लगाओ, मतलब ऐसे नहीं कि एकदम नए नए टॉपिक अभी अभी उठा रहे हैं या फिर मतलब कुछ ही ऐसी चीज कर रहे हैं विच विल नॉट बी बेनिफिशियल, तो वो वाली चीज नहीं कर सकते, बट अदरवाइज एज इन नॉर्मल डिस्ट्रैक्शन तो प्लेसमेंट टाइम में स्पेशली तुम्हारे पीयर ग्रुप से तो बहुत कम फेस होता है, बहुत कम चांस होता है कि वैसा होगा। तो अगर जी। आप इंटर्नशिप सीजन से गो थ्रू करे हो ऑलरेडी, तो यू हैव फेल्ट दैट प्रेशर। तो इंटर्नशिप में समटाइम्स इट फील्स कि प्लेसमेंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन इफ यू हैव अदर प्लान्स, मे बी आप बिजनेस में जाना चाहते हो, मे बी आप बाहर मास्टर्स करना चाहते हो, बट जो प्रेशर है वो सबको फिर फील होता है, जल्दी जल्दी लोग प्लेस हो रहे हैं, वो खुशी होती है। तो इंटर्नशिप में ऑलरेडी इफ यू हैव फेस्ड इट, एंड आई बिलीव दिस सेशन इज मेजरली फॉर द फोर्थ ईयर, राइट? तो आपको पता है वो ऑलरेडी कैसा फील होगा, तो आप ऑन ट्रैक रहोगे। प्लस यू हैव टू इवैल्यूएट कि आपकी अभी क्या सिचुएशन है, एंड वो इवैल्यूएट करना बहुत मुश्किल नहीं है। आप अपने रूममेट से भी पूछ लोगे तो वो बता देगा कि तेरे को क्या आता है क्या नहीं आता है और कितनी तैयारी चाहिए। तो उस हिसाब से प्लान के साथ ही जाओ। अगर ऐसे रैंडमली डेली कुछ कुछ बदलोगे, लाइक आज कोई प्लेलिस्ट देख रहा हूँ फिर कल दूसरी देख रहा हूँ, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा आई वुड से। और अक्षर भैया ने भी और अच्छा एक पॉइंट, हाँ जी जस्ट जी जी स्टार्टिंग, जी जी जी। अक्षर ने भी वो अच्छा मेंशन किया था कि इस टाइम पे मतलब हम, एटलीस्ट मेरे केस में क्या था कि सेगमेंटरी वगैरह मैंने पहले कभी देखे थे, अब लास्ट में नहीं देखा था कभी, क्योंकि जितना मुझे याद है शायद अगर 60-70 ओएस भी हुए होंगे, मुझे गिनती की 2 ही कंपनीज याद है, एक कंपनी याद है जिसने सेगमेंटरी पूछा था। इसके अलावा फिर स्ट्रिंग, सेम गोस फॉर स्ट्रिंग एल्गोरिथम्स, तो मुश्किल मुश्किल है, वो भी एक आधी कंपनी ने पूछा था। हाँ तो मतलब वो लाइक सब मेरे साथ ऐसा हुआ था, लाइक मेरे कई सारे दोस्त थे विच मतलब जो ना एंड में आते आते एकदम दे स्टार्टेड ट्रांसफरिंग देमसेल्व्स इनटू ये फेनविक ट्री, सेगमेंट ट्री के एकदम अच्छे वाले क्वेश्चंस, बट दैट इज नॉट रेलेवेंट टू ओएस जो कंपनीज पूछती हैं आके, मतलब दे फोकस मोर ऑन डीपी, कोर डीपी या कोर ग्राफ या फिर डीपी ऑन ग्राफ या मतलब मिक्स ऑफ दीज डेटा स्ट्रक्चर्स या एल्गोरिथम्स, बट ऐसे बहुत कम होता है कि कोई आके एकदम ही मतलब फेनविक ट्री या फिर सेगमेंट्री, स्पेशली अगर मैं केमिकल की बात करूं जो अमाउंट ऑफ कंपनीज जो हमारे लिए खुलती है, अगर वो मतलब बहुत कम चांस है कि दे आस्क दिस टफ क्वेश्चंस, ज्यादातर लीड कोड के स्टैंडर्ड डीपी या फिर रीसेंट कॉन्टेस्ट में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। आई गेस एक ट्राई था सरप्राइजिंगली हमारे टाइम पे, तो 4-5 बार आ गया था, तो 4-5 हमने बार आ गया एक्सपेक्ट था, नहीं। यस। हाँ हाँ, तो ट्राई कर सकते हो अगर सेगमेंट्री हाँ करने जा ही वही। रहे हो। You need to आप see, फिर मतलब भैया अपना सबको evaluate करो कि at what level you are। अगर आप
you think you are kind of guy जो CP में 1600 1800 के अराउंड करता है, तो that is fine. फिर आप higher problems कर सकते हो solve, you can target higher companies. But if you are pretty much average, so you have to evaluate because time sufficient ही है, and अभी at present I don't think you guys have but even half a month. OAs तो already start ही होने वाले होंगे या हो गए होंगे I think. I think in a week or two start हो जाएंगे तो तो you have to मतलब give up, कोई एक चीज तो give up करनी पड़ेगी. And अगर if somebody is listening जो अभी just बैठने वाला है placements में, तो I think अभी तो you should focus on OAs और जो भी interview related stuff है उसको interviews से थोड़ा पहले भी कर सकते हैं, because it is not like internships कि internships में company आती है, you give OA फिर साथ के साथ इंटरव्यू हो जाता है विद इन अ वीक, तो वो तुम्हारे पास फिक्स टाइम है अभी कि अभी सिर्फ OAs चलेंगे एंड देन यू हैव कितना 2 months आई थिंक. हाँ अभी exactly 2 months. भैया सबको ये भी डाउट रहता है कि क्या इंटरव्यू प्रोसीजर रहता है, मतलब जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज, आप जैसे जो आप तीनों जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में हो, तो इंटरव्यू प्रोसीजर क्या रहता है इन कंपनीज का ज्यादातर? तो आई थिंक सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रोसीजर, जैसे अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं तो जब माइक्रोसॉफ्ट ऑन कैंपस हायर करने आई थी इस साल, तो दे ओनली टुक 2 राउंड्स. वन वाज टेक्निकल राउंड एंड सेकंड वन वाज टेक्निकल प्लस मैनेजरियल राउंड. बट ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है. आई थिंक थॉटस्पॉट ज़्यादा इंटरव्यू लेती है एज फार एज आई नो. तो सिमर अगर तू और एक्सप्लेन कर दे कि क्या कैसा रहता है थॉटस्पॉट का. हाँ, तो मतलब मैंने जितने इंटरव्यूज दिए थे, एक हॉटस्पॉट वाले में क्या था कि 3 राउंड्स थे, 2 डीएसए थे उसमें और एक वो प्रॉपर रेज्यूमे ग्रिलिंग थी. तो रेज्यूमे ग्रिलिंग में तो आई गॉट फ्राइड भाई, मतलब वो बहुत गंदा था. और मतलब डीएसए राउंड्स का तो मैं सिंपल सब बता देता हूँ कि उसमें बस एक डीएसए पूछा था मुझसे, लीड कोड का हार्ड मीडियम कुछ भी, और मुझे 45 मिनट्स या 1 घंटे के अंदर वो सॉल्व करना था. कुछ कंपनीज का होता है वो 2 डीएसए पूछेंगे तुम्हारे से सेम टाइम लाइन में, जैसे गूगल ने 2 पूछने थे 1 घंटे में. और कुछ कंपनीज का होता है कि बस इतना ही होता है, 2 पूछेंगे या 1 पूछेंगे डीएसए. और उसके अलावा मुझसे मतलब ओएस में या लॉक्स वगैरह से रिलेटेड सवाल पूछा था उस डीएसए में, क्योंकि टाइम थोड़ा सा बच गया था. बट प्राइमरीली डीएसए ही इवैल्यूएट था. जो रेज्यूमे ग्रिलिंग वाला राउंड था उसमें वो प्रोजेक्ट्स एंड सिंस ये प्लेसमेंट वाला इंटर्नशिप एक्सपीरियंस से रिलेवेंट भी चीजें पूछ रहे थे, अच्छी खासी पूछ रहे थे. एंड बहुत ज्यादा डेप्थ में गए थे मेरे हिसाब से तो. और उनका मेन था कि सही में ये प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं, अगर किए हैं तो जो टेक स्टैक यूज किया है उसके बारे में मुझे नॉलेज है या नहीं है. साइमल्टेनियसली मेरे इंटर्न एक्सपीरियंस पे तो बहुत ज्यादा, मतलब आई गेस 20 मिनट इंटर्न एक्सपीरियंस पे बात हुई होगी, 20-25 मिनट, और 15-20 मिनट प्रोजेक्ट पे. एक उन्होंने फिर से मस्ती में कुछ पजल टाइप सी पूछी थी, बट अगेन प्राइमरीली फोकस ऑन द रेज्यूमे. इसके अलावा एक और कंपनी में मैंने दिया था, AQR में दिया था मैंने इंटरव्यू. तो उनका सीन था कि ये ऊप्स काफी ज्यादा पूछी थी. फर्स्ट राउंड में ऊप्स पूछी थी, सेकेंड राउंड में भी ऊप्स पूछी थी, थर्ड राउंड में रेज्यूमे ग्रिलिंग. और रेज्यूमे ग्रिलिंग के बाद उन्होंने एक फाइल सिस्टम बनवाया था, अगेन वो ऊप्स में ही था. तो ऊप्स काफी ज्यादा, मतलब AQR वैसी ही कंपनी है जो ऊप्स वगैरह पे ध्यान देगी क्योंकि C++ ओरिएंटेड थी. तो अगेन एज अक्षर मेंशन, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है. और कुछ कंपनी, मतलब मैंने किसी कंपनी का ये नहीं सुना था कि शायद रेज्यूम वो प्रोजेक्ट खुलवा के डायरेक्ट तुमसे रिएक्ट वगैरह में कोड करवा रही है, बट इन जनरल टेक्स्ट से रिलेटेड रिएक्ट हो गया या फिर मर्न वगैरह से रिलेटेड पूछ रही थी मेरे हिसाब से. बाकी अक्षय भैया ऑप्शन. So I think Microsoft का तो Akshan has told, मेरी केस में भी it was very similar. I have given but internship में there was Amazon. I think that is the easiest interview जो होता है internship time पे Amazon का. तो just 1 round, DSA के 2 question fixed. And Microsoft में दोबारा I can repeat. First round is DSA, 1 question, medium hard I think, medium hard or hard for some people. और second is basically everything other than DSA मेरे लिए तो. So they ask oops और LRU cache एक problem उन्होंने पूछा था, but that's it कि
हाउ टू फेस एन इंटरव्यू, कि आपको इंटरव्यू में कभी भी ये तो नहीं दिखाना है कि आपको ऑलरेडी सब कुछ आता है. इफ दे आर आस्किंग अ प्रॉब्लम, वो एक्चुअली वो प्रॉब्लम का आंसर तो उन्हें भी पता है. वो बस आपका थॉट प्रोसेस जानना चाहता है कि हाउ डू यू थिंक, डू यू नो कि इंटरनली कैसे वर्क करता है, आपने क्रैम कर लिया. लाइक इट इज फाइन तो स्टेप बाय स्टेप जाने के लिए. प्लस देयर इज नो, मतलब कोई एक प्रोसेस नहीं है किसी भी कंपनी का. देयर आर कंपनीज जो ग्रुप टॉक्स भी करवाती हैं, फिर उसमें से शॉर्ट लिस्ट करती हैं आपको, राइट. तो यू हैव टू सर्च, मतलब अभी तो ओए पे ध्यान दो. देन जब इंटरव्यूज तुम्हारे आते जा रहे हैं तो तुम देखो उसको कि हाउ इज इट टेकिंग, लास्ट ईयर कैसे हुआ था. अपने सीनियर से कनेक्ट करो जो कि उसी कंपनी में अभी काम कर रहे हैं, या फिर उन्होंने कभी इंटरव्यू दिया था उस कंपनी का, तो यू कैन कनेक्ट विद देम आल्सो. एंड आल्सो आई वुड से कि इंटरव्यू में एक चीज तो फिक्स्ड होती है जो हर कंपनी पूछने वाली है, विच इज रेज्यूमे, योर रेज्यूमे. तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आई थिंक एक एटलीस्ट 2 या 3 टाइम्स आप अपने रूममेट को बोल सकते हो या किसी को भी बोल सकते हो टू आस्क क्वेश्चंस अराउंड योर रेज्यूमे, ताकि आपको एटलीस्ट याद है आपने क्या क्या लिखा है, आप भूले नहीं हो. बिकॉज जल्दीबाजी में हम लिखते हैं बहुत सारी चीजें जो कि हम फिर स्किप कर देते हैं. हाँ, मतलब ये एक्चुअली होता है, मेरे साथ भी हुआ था. लाइक व्हेन आई गेव माय फर्स्ट इंटरव्यू, तो बिफोर माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू आई हैड गिवन 3 इंटरव्यूज. दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ द प्लेसमेंट. तो उसमें भी यही होता था कि लाइक आई आई यूज्ड टू एंड अप मेसिंग अप, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन नहीं होती थी. तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि तुम एक बार अपने प्रोजेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करना है विद इन अ मिनट या विद इन 30 सेकेंड्स एक बार बोल के देख लो, एक बार राइट अप बना लो. बिकॉज वहां पे जब जाते हैं तो वैसे ही दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है, तो हाई चांसेस की मेसअप हो जाए. एंड जैसे भैया ने और सिमर ने बताया, थिंग इज वेरी सिमिलर. हमेशा यही होता है कि यू विल बी आस्क्ड डीएसए क्वेश्चन इन योर फर्स्ट राउंड, एंड यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग दैट यू नो. फॉर एग्जाम्पल, अगर डीपी का क्वेश्चन होगा तो यू विल स्टार्ट विद रिकर्जन, देन यू विल गो ahead with memoization, एंड देन ज़्यादा अगर वो तब भी इंटरेस्टेड है तो you'll go ahead with tabulation. तो ऐसे करके, बट अदरवाइज यू नेवर शो कि मेरे को सब आता है. बिकॉज हो सकता है कि तुम्हारा वो जो टाइम है वो कोई अच्छा क्वेश्चन दे दे जो तुम्हें नहीं आता हो, एंड देन यू विल मेस अप. प्लस प्रोजेक्ट्स की बात, सो आई हैड गिवन एक कंपनी का इंटरव्यू, जेनोटी करके एक कंपनी थी, एंड उसने मुझे प्रोजेक्ट पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे. तो अगर ऐसे, मतलब अगर तुमने ऐसे प्रोजेक्ट बनाया है विच इज़ नॉट योर प्रोजेक्ट, या फिर तुमने किसी और का कॉपी किया है, तो प्लीज़ एंड टू एंड उसको जान लेना कि तुमने करा क्या है. बिकॉज दे कैन आस्क यू द सिंपल आर्किटेक्चर ना, कि अगर फॉर्मल वे में अगर कोई लॉग इन कर रहा है तो क्या क्या हो रहा है. तो ये चीज़ भी ज़रूरी है. एंड इंटर्नशिप के लिए भी सेम प्रोसीजर, प्रोजेक्ट जैसा. जी भैया, आप लोग सीपीआई, क्योंकि आप लोग सीपीआई कैसे मेंटेन करते थे वाइल द प्रिपरेशन ऑफ योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रिपरेशन के टाइम पे सीपीआई कैसे मेंटेन करते थे? ये सबसे मेजर क्वेश्चन है सब बच्चों का, कि सीपीआई कैसे मेंटेन करनी होती है आप जब आप कुछ और भी पढ़ रहे हो साथ में. यार प्लेसमेंट वाले सेम में तो सीपीआई को तो शायद सबने ही चिल कर दिया था कि पेपर वाले दिन ही पढ़ रहे हैं या पेपर से शायद 6-8 घंटे पहले पढ़ रहे हैं. उससे ज्यादा तो इस सेम में तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे सीपीआई पे, क्योंकि जो तुम्हारी सीपीआई यूज होनी थी प्लेसमेंट में, वो इस सेम से पहले वाले सेम्स की यूज होनी थी. और हाँ, मतलब मेरे हिसाब से इस सेम पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं था सीपीआई का. भैया कट ऑफ आ ही जाता है सीपीआई का, मतलब जब भी आप लोग प्लेसमेंट पे बैठते हो तो एक अच्छा खासा 8.5 से ऊपर हर एक कंपनी ऐसा, या डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी? डिपेंड्स, बट डिपेंड्स कंपनी टू मोस्टली कंपनी. यस. हाँ, बट लाइक अगर तुम्हारी सीपीआई अच्छी है तो देन यू विल बी ऑन एन एडेड एडवांटेज. लेकिन अगर देर इज सम गाय इन दिस मीट जो कि सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में है, एंड ही विल बी सेटिंग, और ही और शी विल बी स्टेटिंग इन प्लेसमेंट्स, तो मैं तो कहूँगा कि थोड़ा सीपीआई पे ध्यान दे दो. बिकॉज लोग कहते हैं कि चिल कर दो, बट इन माई केस आई थिंक सीपीआई, मेरी सीपीआई डिसेंट थी, हाई थी, मतलब 9+ थी. तो मेरे को काफ़ी एडवांटेज मिला था. तो स्पेशली नॉन सर्किटल हो अगर, तो मेक इट काउंट. मतलब तुम्हारी सीपीआई ही तुमको कई बार बचा लेती है. तो ऐसा होता है. टाइट से कि अगर पहले वाले ईयर में हो तब तो ध्यान दो, बट अगर फोर्थ ईयर में हो तब तो कोई मतलब नहीं है. लाइक तुम्हारी सीपीआई ऑलरेडी जा चुकी है जो तुम्हें प्लेसमेंट में डालनी है. तो आई थिंक यस,
मैं अक्षुन के पॉइंट से बिल्कुल ही अग्री करूंगा। मेरी 8.5 से कम थी सीपीआई, और मुझे तो दिक्कत आ रही थी कि मतलब कुछ कंपनीज थी जो सिर्फ सर्किटल थी, और उनमें श्योर शॉट था कि भाई ये गिटहब रेपो है, इन्हीं में से सवाल आने हैं, बट मैं एलिजिबल ही नहीं था उनके लिए। और कुछ में ओए देने के बाद शॉर्टलिस्ट में क्राइटेरिया लगा दिया था कि 8.5 प्लस। तो हाँ, सीपीआई बहुत इम्पोर्टेंट है जो सेकंड थर्ड ईयर में। सीपीआई इम्पोर्टेंट है, बट तुम कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में अब। हाँ, दैट इज थिंग। अब क्या ही करोगे, सब लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, यस तो इस टाइम ठीक में है, तो यू हैव सस्ती टू लाओ लेट। भाई कम से कम। मतलब ट्राई करो, बट ठीक है। एनीवेज आई हैव सीन पीपल जिनकी सीपीआईज नहीं होती तब भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि कुछ, फॉर एग्जांपल देता हूँ कि एक वैभव नाम से दोस्त था मेरा, तो ही हैड अ वेरी लो सीपीआई, 8 के अराउंड ही होगी शायद, मुश्किल से। तो तब भी उस ही वाज प्रीटी श्योर उसका डेटा साइंस में था इंटरेस्ट, एंड ही वाज प्रीटी श्योर कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, तो ही लैंडेड इनटू मेनी इंटरव्यूज फिर उसके लिए, क्योंकि फिर वो ओएस पास कर लेता था एंड अदर फैक्टर्स। क्योंकि आई थिंक सीपीआई का फैक्टर इज जस्ट टू लैंड यू इनटू एन इंटरव्यू। फिर इंटरव्यू में तो सीपीआई मैटर नहीं करता, एक बार आप इंटरव्यू चले गए हो तो, राइट? यस वो आपके स्किल पे डिपेंड करता है, आप इंटरव्यू में क्या करते हो। हाँ श्योरली। फिर तो आपकी कॉन्वर्सेशन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस एंड योर नॉलेज ऑब्वियसली वही टेस्ट करेंगे वहां पे। Yeah. सीपीआई would never matter, your branch would never matter. I don't think कोई भी कंपनी आके ऐसे बोलती है कि आपकी ब्रांच से कोई क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत रेयरली आई थिंक कोई होगी ऐसे, अगर होगी तो। हाँ ये तो है। या क्वेश्चन प्रोजेक्ट सेक्शंस में से क्या पूछते थे, मतलब प्रोजेक्ट को सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए पूछते थे, या कुछ कुछ बेसिक चीजें भी, प्रोजेक्ट की छोटी छोटी चीजें भी पूछ लेते थे? डिपेंड, वो भी डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। नहीं वो तो इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है। कंपनी, एक कंपनी में भी डिफरेंट पैनल्स हो सकते हैं, बट अगर इंटरव्यूअर, फॉर एग्जांपल तुमने कोई ऐसी चीज लिखी है जिसमें इंटरव्यूअर इज डिसेंट इनफ या गुड इनफ या उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उसमें, तो फिर वो ट्राई करेगा कि वो पूछ ले, एंड अगर तुम उसको बताते चले गए देन मतलब स्ट्रॉन्ग हायर टाइप्स वो दे देगा वो। लेकिन अदरवाइज मोर और लेस जेनेरिक, मतलब एटलीस्ट मेरे से जितनी भी मैंने इंटरव्यूज दिए हैं आज तक, उन सब में बहुत जेनेरिक पूछते थे कि एंड टू एंड बता दो तुम्हारा एप्लीकेशन करता क्या है, एंड टू एंड बता दो तुमने ये क्यों यूज किया है, लाइक ये एक्स वाई जेड टेक स्टैक क्यों यूज किया है, किस लिए यूज होता है, व्हाई इज दिस बेटर देन दिस, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस। सो यू हैव टू फोकस जब आप अपने प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन कर रहे हो। तो जनरली द थिंग इज, अगर कोई भी इंटरव्यूअर बनता है, लाइक वी काइंड ऑफ गाइज, हम ही इंटरव्यूअर बनते हैं राइट, कॉर्पोरेट में एटलीस्ट। तो हम क्या चाहेंगे, वी वुड आस्क कि पहले अपना कोई प्रोजेक्ट फेवरेट एक्सप्लेन कर दो। अगर वेरी जेनरिक वे में जा रहे हैं तो यू एक्सप्लेन दैट प्रोजेक्ट जिसमें आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। डू नॉट ट्राई टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर उसमें, बिकॉज आप जो भी बोलोगे फिर उसमें से क्वेश्चंस पूछेगा। एंड I don't know if it is 100% सबके लिए होगा applicable या नहीं, but if you have an ML project then that's good, क्योंकि डेवलपमेंट मोस्ट ऑफ द लोगों को आती होगी, आपको रिएक्ट में और बहुत सारी चीजों में फंसा लेंगे। if you have an ML project and you are applying for a software engineer, तो sometimes वहाँ पे वो leniency कर लेते हैं, because उनको भी each and every detail नहीं पता, because ML फील्ड में बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। But you can showcase there ना कि you can explain the terms, you can gain that confidence interviewer का। जी भैया। इसके अलावा मतलब मेरा था कि एक मैं टॉप 50 रिएक्ट, टॉप 50 सी प्लस प्लस ये वाले क्वेश्चंस भी देख लेता था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस रफली पूछ लेते थे एटलीस्ट टफ टेक स्टैक से रिलेटेड। एंड इनमें मतलब मुझे लगता था भाई क्या ही होगा है टॉप 50, मतलब क्या पता बेसिक क्वेश्चन भी पूछ रहे हो, बट उनमें बहुत ज्यादा ऊटपटांग चीजें होती थी। एंड इसीलिए एक बार वो देखना जरूरी है मेरे हिसाब से, हाँ खास करके जो टेक स्टैक्स को मैंने प्रोजेक्ट में यूज किया। करेक्ट करेक्ट। हाँ टॉप 50 मतलब बस गूगल पे तुम्हें सर्च करना है टॉप 50 जीएफजी क्वेश्चंस नेम ऑफ द टेक स्टैक, और फिर उसको सर जल्दी जल्दी देख लो इंटरव्यू से पहले, क्योंकि कई बार वो उसी से बिल्कुल वो भी वही पढ़ के आते हैं, तो तुम भी वही पढ़ के जाओ, तो तुम्हारा मैच हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। हाँ, जी अब तो भैया। you और can resume also ना on LLM, any हाँ kind of an LLM you can ask करेक्ट। कि questions पूछ लो, you can prepare well उससे। हाँ करेक्ट। और अक्षत भैया ने जैसे बोला एमएल प्रोजेक्ट वाला,
उस सीन के वो मैंने शायद अक्षत भैया से पूछा था, तो मैंने क्या कर लिया था कि 2 रिज्यूमे बना लिए थे, और फिर जैसे जैसे कंपनीज आती थी मतलब पता तो लग ही जाता था कि उनका मतलब ज्यादा इंक्लिनेशन है कि वेब डेवलपर चाहिए कि प्रॉपर उसे आता हो डेव, या ऐसा चाहिए कि ऑल राउंड एसडी टाइप चाहिए। तो जिसे एसडी टाइप चाहिए था मैं उसमें एमएल प्रोजेक्ट वाला रेज्यूमे भेज देता था, जिसको चाहिए था डेवलपर प्रॉपर वेब डेव वाला, उसमें मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर वो वाला रेज्यूमे। तो ये सी तो ऐसा कर सकता हूँ। भैया ओए में कौन से टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं? टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या पूछते हैं ओए में नॉर्मली? डिपेंड्स, पूरा कंपनी पे डिपेंड करता है। दैट इज व्हाई वी वर सेइंग ना कि यू शुड रिव्यू दूसरे ओएस, उस कंपनी ने कैसे पूछे हैं। देयर आर मेनी मेनी पैटर्न्स। कोई एनवीडिया है, उनके बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं, एंड देन आई थिंक कोई एक होता होगा अगर डीएसए का होता भी होगा क्वेश्चन, आई डोंट रिमेम्बर आल्सो अभी तो। बट एवरी कंपनी डिपेंड्स यार, कि माइक्रोसॉफ्ट में आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चंस थे, हाँ 2 क्वेश्चंस थे। एंड Amazon में आप क्वेश्चन कैसे कर रहे हो डजेंट मैटर, इंटर्नशिप के लिए कह रहा हूँ, प्लेसमेंट्स के लिए तो आई डोंट थिंक आती है, बट इट मैटर्स कि उनका एक साइकोमेट्रिक बेस्ड कुछ टेस्ट होता है, इन दैट यू शुड एस दैट। फिर देयर आर और कंपनीज जो ऊप्स पूछती हैं, कोई दूसरे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी पूछ लेती है, लॉजिकल रीजनिंग भी पूछ लेती है कंपनी। सो इट ऑल डिपेंड्स, बट आप एटलीस्ट पुराना ओए देख लोगे तो आपको पता होगा कि फर्स्ट सेक्शन में क्या आने वाला है, सेकंड सेक्शन में क्या आने वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन इजियर होता है या लास्ट क्वेश्चन इजियर होता है, बिकॉज दिस इज द सेम पैटर्न जो वो फॉलो करती है कंपनीज, कि मीडियम डिफिकल्ट हार्ड कैसे होने वाला है, जम्बल्ड अप होगा या कैसे होगा। दैट्स इट। सो फॉर एग्जाम्पल एक गूगल का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। गूगल का आई थिंक 4 या 5 घंटे की एक विंडो खुलती है जब वो काफी सारे आईआईटीज में एक साथ ही टेस्ट लेती है, अपना ओए लेती है। सो इवन देन पीपल मैनेज टू गेट द क्वेश्चंस जस्ट इन अ 1 hour गैप और समथिंग, क्योंकि हमारा में भी हमारे कॉलेज में थोड़ा सा आगे जाना था। तो दैट इज, मतलब वो तो मैं अपना एक्सपीरियंस आउट ऑफ दिस क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ कि तो आप थोड़ा अवेयर रहना, ओएस जरूर रिव्यू कर लेना दूसरे। और एडिंग ऑन टू मतलब अक्षय भैया ने जो बोला, मतलब इन जनरल जो इसका स्टाइल रहता था ये रहता था कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज डीएसए पूछती है। फिर सेकंड मोस्ट थिंग जो मेरा एक्सपीरियंस था जो पूछी जा रही थी वो एमसीक्यूज थे, एसक्यूएल, ऊप्स, ओएस से रिलेटेड और डीबीएमएस से रिलेटेड। थर्ड मोस्ट फ्रीक्वेंट चीज थी वो थी एसक्यूएल क्वेरीज लिखवा रहे हैं। अब ये मोस्ट फ्रीक्वेंट मतलब ये काफी रेयर हो रहा है, मतलब 10 कंपनीज में या 12 कंपनीज में एसक्यूएल क्वेरीज लिखवा ली। अब लकीली एसक्यूएल क्वेरीज के साथ क्या हो रहा था कि अच्छे खासे बच्चों ने उस टाइम पढ़ नहीं रखा था एसक्यूएल, तो अगर तुमने सॉल्व कर ली तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ रहे होंगे। और इसके अलावा एक ही कंपनी मुझे याद है, हाई लैब्स, जिसने ओए में हमसे वो करवाया था, मतलब फ्रंट एंड वाला कोड लिखवाया था जावास्क्रिप्ट वाला। तो उसमें तो जिसने कर दिया था उसका उसकी शॉर्टलिस्ट आ गई थी। प्लस हाई लैब्स में एक केस ये भी हुआ था कि उनका एक डीएसए वाला क्वेश्चन गलत था, जो कि वो कलेश हो गया था। फिर लोगों ने कुछ ने सोचा भाई डीएसए सॉल्व करते ही करते हैं, डेव भाड़ में जाए। उन्होंने फिर उनकी शॉर्टलिस्ट नहीं आई, बट जिन्होंने डेव वाला किया था उनकी शॉर्टलिस्ट आई है। फिर ऐसा ही था। हाँ प्लस तुम ओए से भी जज कर पाओगे कंपनी को कि वो किस टाइप का इंटरव्यू प्रोसेस रखेगी, अगर ये फ्रंट एंड करवा रही है, मतलब डेव तो पूछने वाली है इंटरव्यू में। तो ऐसा कर सकते हैं। एंड लाइक अगर ओए स्पेसिफिक है तो आई वुड लाइक टू ऐड कि बहुत सारी कंपनीज आई थी ऐसी। आई थिंक एक सेवियंट करके कंपनी थी, एज फार एज आई रिमेम्बर, बहुत अच्छे से याद नहीं है मुझे। एंड उस कंपनी ने स्पेसिफिकली बोल दिया था कि हम जावा में ही क्वेश्चंस पूछेंगे, लाइक वी वोंट अलाउ यू टू कोड इन एनी अदर लैंग्वेज। तो अगर तुमको मतलब पता चलता है कि एक्स वाई जेड कंपनी में 2-3 दिन बाद जिसका टेस्ट है एंड दे आर गोइंग टू आस्क इन जावा या जावा स्क्रिप्ट या पाइथन एक्स वाई जेड, तो तुम लोग मतलब ट्राई टू कंप्लीट बेसिक्स वाला पार्ट, बिकॉज अगर वो क्वेश्चन जावा स्क्रिप्ट या जावा में आ रहा है तो मतलब मेजर अमाउंट ऑफ जो कॉलेज का चंक है वो नहीं कर पाएगा।
तो इसलिए हाई चांसेस हैं कि तुम मतलब वो या तो आसान क्वेश्चन पूछेंगे, सिंपल लूप टाइप्स या एरे बनाने वाला टाइप्स, ऐसे करके कुछ तुम सॉल्व कर लोगे, या तो फिर अगर बहुत टफ आएगा तो फिर तो हार्ड लक, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो फर्स्ट केस है जिसमें वो सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, दैट इज, उसकी चांसेस आर वेरी हाई। तो डेफिनेटली मतलब अगर ऐसा कुछ पता चलता है कि जावा या जावास्क्रिप्ट आने वाला है, तो उसको तो एटलीस्ट कर लेना चाहिए। लाइक मतलब मेरे को आई थिंक मेरी 2 या 3 शॉर्टलिस्ट इसी वजह से आ गई थी, क्योंकि मुझे जावास्क्रिप्ट या जावा डिसेंट आती थी ओए के टाइम तक। तो मतलब ये भी एक चीज़ है। एडिंग टू दैट, एक हमारा मतलब जो अक्षर ने बोला कि कंपनीज का पूछ लेना जावा और जावास्क्रिप्ट में कोड तो नहीं करवा रहे सर, क्योंकि विलिंगनेस भी इम्पोर्टेंट होती है। तो हम क्या करते थे, अगर पता लगता था जावा में ही कोड करवाने वाले हैं, हम उस कंपनी को ही चिल कर देते थे कि भाई विलिंगनेस भी इम्पोर्टेंट। हाँ, तो ऐसे। और जावा मतलब मेरे को पाइथन भी नहीं आती थी, तो पाइथन वाली भी कंपनी पता लगती थी, मैं चिल कर देता था भाई ये तो नहीं थी पाइथन में DS। तो हाँ, उस हिसाब से तुम अपनी विलिंगनेस वगैरह बता सकते हो। प्लस आई गेस हर साल विलिंगनेस लास्ट में 5 बढ़ ही जाती है। बढ़ी जाती है, हाँ। एंड अगर नॉन सर्किटल से हो तो मतलब पता नहीं, मेरी तो लास्ट तक भी 45 या 46 ही हुई थी इस साल। इनफैक्ट 2025 में नंबर ऑफ कंपनीज जो 2024 में आई थी उससे ज़्यादा आई थी, तब भी मेरी 45-46 ही हुई थी। तो अगर मतलब नॉन सर्किटल से हो तो ज़्यादा विलिंगनेस के बारे में नहीं सोच के भी भर सकते हो कि क्या पता इसमें भी आ जाए टाइप्स। क्योंकि मैं तो ऐसे कर देता था, लाइक मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखता था, मैं फिल कर देता था कंपनी का विलिंगनेस। भैया डीएसए के अलावा एज सच कुछ ज्यादा और कुछ मेजर एम्फेसिस रहता है कुछ पूछने के लिए, मतलब कोई टॉपिक जो हर कंपनी डीएसए के अलावा पूछती ही है, कराती ही है? आई थिंक बेसिक आपको कंप्यूटर के कुछ सब्जेक्ट्स आने चाहिए। देयर आर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, मतलब अगर आपको ओएस आता है एंड इट इज गुड, कंप्यूटर नेटवर्किंग आता है तो ठीक है, ओएस नहीं भी आता हो तो चल जाएगा। बट जनरली ओएस इज समथिंग जो इजियर होता है और आपको कर लेना चाहिए, बिकॉज देयर आर हाई चांसेस पूछ लेती है कंपनीज ओएस में से सवाल। और ऊप्स ऊप्स तो है ही। ऊप्स इज लाइक बेसिक, वो तो आप कभी भी हाँ। एक्सपेक्ट कर सकते हो, आउट ऑफ एनीथिंग कभी भी पूछ लेंगे बीच से ही उठा के। तो ऊप्स इज तो वेरी बेसिक। देन डीबीएमएस आई फील कि हाँ यू शुड डू टू अ बेसिक लेवल, ताकि आपको अगर कोई आर्किटेक्चरल क्वेश्चन आ जाए तो यू आर नॉट मेस्ड अप इन योर हेड कि कैसे होता है डेटाबेस को कैसे मैनेज करा जाता है। तो थोड़ा बहुत अगर आपने डीबीएमएस पढ़ा हुआ है तो इट इज गुड, ऑलवेज हेल्प्स। फिर तो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, फिर आपको बिल्कुल एसी करना है तो कंप्यूटर नेटवर्किंग है, हाँ। और भी है, सिस्टम डिजाइन पढ़ सकते हो फिर आप, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एटलीस्ट एट द मतलब बेस लेवल पे तो नहीं रिक्वायर्ड है। SD2 के लिए यस, बट नॉट इन द कॉलेज। ओके। वही। और अ, मतलब जितना मुझे पता है, बहुत ही कम कंपनीज होते हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क्स और सिस्टम डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। बट ये फिर वही वाला केस है कि तुम एक बार सीनियर से पूछोगे कि इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था, वो बताएंगे कि इसने सिस्टम डिजाइन पूछा था, पढ़ लेना, तो तुम पढ़ोगे। वरना ये पहले से तो प्रेप नहीं करते, क्योंकि बहुत ही रेयर चंक ऑफ कंपनीज होते हैं जो ये पूछ रही हैं। डीबीएमएस वगैरह, फिर डीबीएमएस ओएस फिर भी पूछ सकती है। ऊप्स तो पूछती ही है, डीएसए पूछती ही है, एसक्यूएल भी पूछ सकती है। यस। जी जी। भैया क्या ज्यादा प्रेफरेबल होता है, मतलब सीपी ज्यादा प्रेफरेबल होता है या डीएसए ज्यादा प्रेफरेबल होता है, या दोनों ही करना चाहिए? आई थिंक मेरे मैं अगर इसको आंसर करूंगा आई वुड से कि देयर इज नॉट मच डिफरेंस पहले तो इन सीपी एंड डीएसए। देयर इज, वो फिर जब आप बेस लेवल से ऊपर जाते हो तब आता है। एंड उसमें देन आई वुड से इफ यू आर जस्ट टारगेटिंग एवरेज सेट ऑफ कंपनीज या मतलब अच्छी कंपनीज भी, बट मेजर पोर्शन आप कवर करना चाहते हो, देन इट इज डीएस से। बिकॉज फिर सीपी नहीं पता कितना हेल्प करेगा, लाइक गूगल एंड एवरीथिंग जो बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछते, देन सीपी वुड ऑब्वियसली हेल्प, बट अदरवाइज डीएस से इज फाइन, फिर लीड कोड इज फाइन मतलब। हाँ, बट लाइक अभी तो ऐसा हो गया है कि मतलब
आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर तक अगर मेरे से कोई ये क्वेश्चन पूछता तो मैं यही बोलता कि सीपी और डीएसए, बट अब तो लीड कोड ने भी अपना लेवल लाइक काफी अच्छा कर लिया है। इन रीसेंट टाइम्स मैं देख रहा था तो लाइक लीड कोड का लेवल भी अच्छा हो गया है। एंड कोड फोर्सेस बहुत ज्यादा मैथ्स की साइड शिफ्ट होता हुआ दिखता है मुझे। एटलीस्ट जो मेरा लेवल था, मैं ए बी सी के ऊपर कभी नहीं कर पाता था, तो मेरे को अपने उस लेवल में सिर्फ मैथ्स और पैटर्न ही दिखते थे। तो फिर इसलिए मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना कम कर दिया था कोड फोर्सेस पे, एंड आई यूज्ड टू फोकस ओनली ऑन गिविंग कॉन्टेस्ट्स। बाकी प्रैक्टिस सिर्फ लीड कोड से करता था। और लास्ट ईयर प्लेसमेंट्स के टाइम पे मतलब मुझे नहीं लगता ऐसी कोई कंपनी आई होगी जिसने बहुत ही ज़्यादा टफ कुछ पूछा हो जो कि सिर्फ सीपी वाले लोग कर सकते हैं, या मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो कि खाली सीपी करते हैं, डीएसए कम मतलब लीड कोड कम करते हैं, तो वो वाले लोग कर सकते हैं और ये वाले नहीं कर सकते। ऐसा बहुत कम था। एंड 90% ऑफ द केसेस में क्वेश्चन लीड कोड के ही आते थे, मतलब वो कभी के क्वेश्चन होंगे किसी थोड़े थोड़े महीने पहले के, तो वो डायरेक्ट लीड कोड से उठा उठा के देती थी कंपनी थोड़े ट्वीक्स करके। तो इट्स ए लीड कोड। मेरा एक्सपीरियंस था कि जब मेरी इंटर्न लगी थी उसके बाद तो मैं सीपी कर रहा था। एंड इंटर्न से पहले मतलब मैंने डायरेक्ट डीएसए उठाया था, तब मैं इतने अच्छी प्रेप नहीं थी मेरी, तो मेरे को डीएसए करने में दिक्कत आ रही थी। फिर इंटर्न के बाद जब मैंने सीपी करी थी, फिर जब पीपीओ नहीं आया था तब मैंने फिर से डीएसए उठाया था, लीड कोड वगैरह और ड्राइवर शीट। तब मुझे फील आई थी कि हाँ, इतना सीपी करने के बाद एक्सपोजर काफी ज्यादा हो गया, मतलब सोचना आ गया है। ऐसा नहीं है कि मैं डीपी या ग्राफ के क्वेश्चंस कर पाऊंगा, बट एटलीस्ट मैं अप्रोच कर पाऊंगा। एंड कुछ भी डेटा स्ट्रक्चर अगर मुझे पकड़ाओगे तो मैं थोड़ा सोचूंगा और फिर कर सकता हूँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उसके। तो आई गेस सीपी सोचना सिखाती है। एंड अगर तुम पे टाइम है तुम सीपी ट्राई कर सकते हो। अगर टाइम कंस्ट्रेंट है, जैसे अब भी तुम प्लेसमेंट में बैठ ही रखे हो, तब तो लीड कोड ही करना चाहिए क्योंकि उसके सवाल रिपीट होते हैं। भैया एआई का कुछ यूज आता है ज्यादा, या वो थोड़ा आगे ट्रेंड आएगा? अभी एज सच अगर आपको एआई का यूज करके कुछ कोड करना आता है तो एज सच वो कुछ हेल्प करता है, या इट्स नथिंग लाइक कि हेल्प करेगा कुछ? You can take help in प्रोजेक्ट्स में ले लो। प्रोजेक्ट्स जब आप बना रहे हो आप समझ सकते हो, थोड़ा फास्टर पेस पे समझ सकते हो। जो कि मजदूरी होती है कोड लिखते हुए, वो मजदूरी शायद ना करनी पड़े। ये एक एक वेरिएबल उठा के आप डाल रहे हो, कहाँ डालना है, क्या करना है। आप मेजर कॉन्सेप्ट्स ग्रैब कर सकते हो थोड़ा फास्टली, प्रोजेक्ट थोड़ा फास्टर बिल्ड कर सकते हो इससे। उसके अलावा मतलब अगर आप इंटरव्यू वगैरह के पर्सपेक्टिव से ही पूछ रहे तो आई डोंट थिंक कितना ही हेल्प करेगा। यू कैन जस्ट प्रिपेयर वेल, अपना रेज्यूमे शेयर करके मेजर क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं ये सब थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर सकते हो। बट देयर आर अदर मेथड्स आल्सो अभी तो जहाँ से कर सकते हो आप ऐसी सेम प्रिपरेशन। मेरे हिसाब से तो एआई बस हाँ वही प्रोजेक्ट और वही ऊप्स ओएस की प्रैक्टिस के लिए आ सकता है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं उसका। जी भैया। और आप लोग जब थर्ड ईयर में हो गए तब आप लोग कोर टीम हो गए, मतलब इधर क्लब्स एंड फेस्ट सब हो रहे थे तो आप लोग कोर टीम हो गए, और उसी के बाद फोर्थ ईयर स्टार्टिंग में ही आपका प्लेसमेंट होगा। तो आप लोगों ने वो दोनों को कैसे बैलेंस किया? हाउ डिड यू बैलेंस बोथ ऑफ देम, कि क्लब का भी काम करना है फेस्ट के लिए भी, क्योंकि आप लोग सब हेड को हेड्स होंगे क्लब्स के, थर्ड ईयर में तो सब बन ही जाता है। तो आप लोग ने फोर्थ ईयर स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, और फेस्ट मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं होता, आपका प्लेसमेंट सीजन शुरू हो जाएगा, बट वही है कि एंड होते होते थर्ड ईयर आप लोग क्लब्स में हो गए, तो आप लोगों ने कैसे एक दो महीने में ही सब ट्रेनिंग किया, या उससे पहले भी आप लोग सब करते थे? मेरा केस था कि मतलब मैं थर्ड ईयर में मतलब शायद ऐसे हफ्ते में 2-3 बार लाइब्रेरी चले जाता था, क्योंकि कॉलेज हॉस्टल में काफी ज्यादा मस्ती वगैरह चलती रहती थी। वहां जाके मैं पढ़ लेता था कि मुझे दिख गया था, मतलब टू बी फेयर औकात दिख गई थी इंटर्न टाइम पे कि भाई पढ़ लेना चाहिए। तो इस वजह से मैं चले जाता था वीक में 2-3 बार। और ऐसे हाँ मतलब यही था मेरा। तो ऐसे इतना ज्यादा वो नहीं था कि भाई ग्राइंड मोड लॉक इन, बट ऐसा भी नहीं था कि ढीला छोड़ दिया, बैलेंस चल रहा है, चलते रहे। मैं तो ऐसे ही मेरा केस तो मतलब मेरा केस बहुत डिफरेंट था। मैं किसी क्लब क्लब का पार्ट नहीं था, बट आई यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल। तो मतलब सॉर्टेड टाइम था, शाम को ही जाना है खेलने, बाकी पूरा दिन फ्री है, फिर रात को आके फिर पढ़ लेना है। तो शाम को मैं खेला, मतलब इनफैक्ट प्लेसमेंट टाइम तक भी आई यूज्ड टू प्ले
3-4 आवर्स, तो मेरे को कोई उसमें वो नहीं लगता था, बिकॉज बाकी पूरा टाइम आपके पास है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। स्पर्धा के टाइम पे बस वो 3 दिन आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी होती थी, दैट्स इट। तो मतलब मेरे केस में मैं इसका अच्छे से आंसर नहीं दे पाऊंगा, बट हाँ बाकी टाइम पे मॉर्निंग टाइम है, रात का टाइम है, यू कैन ऑलवेज स्टडी, चाहे लाइब्रेरी में चाहे रूम पे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन अराउंड योर रूम। हॉस्टल टू हॉस्टल मतलब चेंज होती है वो सिचुएशन। वैसा था। मेरा केस था, मैं थोड़े था, आई वाज इन, मतलब मैं काफी सारे चीजों में लगा रहता था इधर उधर। सो जब मेरी इंटर्नशिप लगी थी तब से मैं नहीं पढ़ा। तब तो मैंने बंद ही कर दिया था, मतलब लैपटॉप में से VS कोड भी खत्म हो चुका था मेरे, तब तक रीसेट वगैरह हो गया था। बट मैं एडवाइज नहीं करूंगा ऐसा करना, क्योंकि मैं फिर बाद में लाइक पूरा दिन बैठ के भी कवर अप कर लेता था, चाहे 10 घंटे 12 घंटे डेली कुछ करना पड़े। वो मैंने फिर कवर अप कर लिया था जस्ट जब इंटर्नशिप से आते हैं, एंड देन जो 3-4 महीने का टाइम मिलता है उसमें मेजरली। बट इन माय केस, फॉर एग्जांपल मैं पार्लियामेंट में हॉस्टल्स कमेटी का कन्वीनर था उस टाइम पे, तो देयर वाज लोड वहां पे भी बहुत सारा। बट वो हेल्प भी करता है यार, मतलब ठीक है, आप एक ही चीज भी नहीं करते रहोगे ना पूरा दिन, कुछ तो टाइम आप या मेंटल पीस भी लोगे, जी तो जी वहां जाके थोड़ा डिफरेंट चेंज हो जाता है। आप बाहर जाते हो, थोड़ा एक्टिव होते हो, लोगों से बात भी करते हो, वरना इट फील स्ट्रेस स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। मेरे को दिक्कत हो जाती है यार, इतना स्ट्रेस थोड़ा ना झेल पाते, तो ठीक है। ठीक है, मतलब हेल्प करता है फेस्ट, इट इजंट कि आप ज्यादा सोचो। फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ फेस्ट आपके करियर के बीच में आ रहा है, तो यू आर द बेस्ट जज, छोड़ दो। अब चाहे जो कुछ भी बोले, थोड़ा सा आप चिल कर सकते हो उसको, बिकॉज हाँ फिर वो तो आपका करियर है ना। जी भैया। भैया आप लेट्स ओपन दिस फॉर द ऑडियंस। ऑडियंस को कुछ कुछ डाउट होगा तो वो पूछ लेंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस। आई गेस चैट में बहुत सारे आ रखे थे। आई थिंक हाँ, काफी सारे चैट में तो क्वेश्चन बहुत आ सारे रहे आ रखे थे, एंड लाइक कि रेज करें हैंड एंड देन उसके बाद पूछें, ताकि आप लोग को भी कोई प्रॉब्लम ना हो आंसर करने में। ठीक है, जी। आई हैड अ थिंग टू शेयर। जब आप या भैया इंटरव्यूज बोल दीजिए आप कुछ। जाते हो, then always turn on some kind of a background, either जैसा सिमर का है या आदित्य का है। अक्षन्स फाइन एज वेल, बिकॉज वो स्टैटिक है, बट आप जब कॉलेज में होते हो, आई डोंट थिंक वो इतना इजियर है एक स्टैटिक रूम वगैरह ढूंढना समटाइम्स। बट आई थिंक प्लेसमेंट टाइम पे तो दे देते हैं रूम। बट स्टिल इट इज एडवाइजेबल, बहुत कम कंपनीज के लिए मे बी अप्लाई हो। बहुत अगर कोई पुराना सा बंदा आ गया आपसे इंटरव्यू लेने, तो वो अनप्रोफेशनल समझेगा आपको। आई थिंक द सेम रीजन हम अपनी दाढ़ी वगैरह काटते हैं और सब, है ना, वो यही रीजन है, बस डेकोरम मेंटेन करने के लिए। तो यू कैन हैव सम काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड, इट हेल्प्स। जी जी। और एक लेट्स और ओपन चीज इट फॉर द मुझे ऑडियंस। शेयर करनी थी, जी मुझे जी जी याद बोलिए। आया। मेरे टाइम प्लेसमेंट के टाइम मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं सोच रहा था कि अक्टूबर और नवंबर का महीना है, नवंबर में इंटरव्यू प्रेप कर लूंगा, अक्टूबर तक अपना डीएसए और एसक्यूएल वगैरह पे ध्यान देता हूँ, और या फिर जो ओए में पूछ रहे हैं। अब हुआ क्या कि नवंबर में टीपीसी ने एकदम से बहुत ज्यादा ओएस कंडक्ट कराए थे, मतलब एक दिन में 3 या 4 ओएस हो रहे हैं। फिर बीच में एकदम से एंडसेम आए थे, मतलब ध्यान नहीं था कि एंडसेम भी आने वाले हैं, और फिर से टीपीसी ओए करवा रही थी काफी ज्यादा। तो मेरे को नवंबर में तो रेज्यूमे प्रेप या फिर ये सब करने का बहुत ही कम टाइम मिला था। तब मुझे लगा था यार पहले थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए था मुझे। और वो मुझे लगता है कि तुम देख सकते हो कि प्रोबेबली इस बार भी नवंबर में काफी ही ज्यादा होगा, क्योंकि अक्टूबर में रहता है दिवाली दशहरा, प्लस कंपनीज इतनी जल्दी करवाने भी में इंटरेस्ट भी नहीं रखती। तो अगर उन्हें इंटरव्यू दिसंबर में करवाना है तो नवंबर में इंटरेस्टेड है। तो इस वजह से नवंबर में मेरे हिसाब से ज्यादा, काफी ही ज्यादा ओवेज होंगे। और अक्टूबर फिर भी थोड़ा डिसेंट रहेगा। सितंबर में तो होते ही नहीं है, 1 या 2 होते हैं बस। हाँ नवंबर में थोड़ा लोड बढ़ जाएगा मतलब। बहुत हाँ बहुत बहुत। ज्यादा, मतलब थोड़ा नहीं है, दिन में ऐसे 3-3 4-4 टेस्ट होंगे तो बढ़ जाता है लोड। एंड मतलब इनफैक्ट जिसने जो बोला दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर तुम्हें इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो यू कैन मतलब स्टार्ट इट राइट अवे, अभी ज्यादा टाइम बाकी नहीं है। बिकॉज द मोमेंट एंड सेम्स खत्म होंगे तो दिन में 6-6 टेस्ट हो रहे होंगे, तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें।
तो इसलिए मतलब फिर ऐसे करते करते 1 दिसंबर आ जाता है, तो बहुत ही कम टाइम रह जाता है। तो अभी से ही स्टार्ट कर लो अगर इंटरव्यू प्रेप एंड ऑल करनी है तो। आई थिंक भविष्य हैज हैंड अप। जी किसका मैं देख रहा हूँ। हेलो हेलो। यस हेलो भविष्य जी, आप पूछ सकते हैं। भैया, मैं भविष्य था, केमिकल ब्रांच से, फर्स्ट ईयर से। ओके। तो मैं ना अभी फर्स्ट ईयर से, मेरी पढ़ाई तो साथ साथ चल रही है। तो अभी मैं साथ साथ फोकस कर रहा हूँ डीएसए पे। जावा में डीएसए कर रहा था। और डीएसए के बाद मैं डेवलपमेंट सोच रहा था कि वेब डेवलपमेंट का कोर्स करके फिर प्रोजेक्ट्स बिल्ड करूंगा। तो मैं पूछ रहा था कि आपके कैसे करना चाहिए प्रोसीड। ऐसे भी डीएसए मेरा खत्म होने वाला है अभी। टैग करा था पहले मैंने, उसके बाद अभी क्यू खत्म करा है। अब आगे ट्रीज वगैरह आने वाले हैं, ट्रीज और ग्राफ्स। बस कंप्लीट करके उसके बाद डेवलपमेंट पे शिफ्ट होऊंगा। तो आगे कैसे करना चाहिए? मतलब अप्रोच तो सही है, लाइक देयर इज नो नथिंग बैड, बट आई वुड से कि डीएसए को मतलब थोड़ा टाइम दे के करना। ऐसा हसल बसल जल्दी जल्दी में करने के चक्कर में ना मिस नहीं हो जाना चाहिए कुछ। तो अदरवाइज हाँ, अभी अभी के लिए इट इज़ गुड कि तुम डीएसए पे फोकस कर रहे हो, बिकॉज डेवलपमेंट एंड ऑल तुम लेटर स्टेजेस में भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में या सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर टाइप्स में भी कर सकते हो। बट हाँ, लाइक डीएसए तो अभी कर रहे हो, दैट इज गुड। बट आराम से करना, मतलब अभी कोई जल्दी नहीं है, अभी फर्स्ट ईयर में हो तो अभी टाइम है तुम्हारे पास। ट्राई गोइंग टू द डेप्थ ऑफ द कंसेप्ट एंड उसको अच्छे से समझ लो। हसल बसल करके जल्दी जल्दी करके मत करना, बिकॉज वो घूम के वापस ही आता है इंटर्नशिप के टाइम पे कि अरे ये तो मुझे नहीं आता, ये नहीं आता, तो इसलिए बस ये। तुम्हें फर्स्ट ईयर में अभी कितना टाइम हुआ है? मतलब शायद और ये ज्वाइन जुलाई में ही किए होंगे। हाँ वही। कितने महीने? 1 अगस्त, 2 महीने होने ओके। वाले हैं। और अभी प्रोबेबली तुमने डीएसए शायद ऐसे कोई प्लेलिस्ट उठाए होगे, वैसे कर रहे होगे, वीडियोस देख रहे होगे तुम। मतलब वो प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाके रैंडम प्रॉब्लम्स ट्राई कर सकते हो। जितना तुमने कर लिया उतना बहुत ज्यादा है स्टार्ट करने में। मतलब तुम्हें थ्योरी बहुत आती है, तुमने प्रॉब्लम नहीं लगानी। तुम ऐसे कोड फोर्सेस वगैरह पे जाके ट्राई कर सकते हो। अभी वही टाइम है कि तुम थोड़ा सीखो कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होता है। इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स में जरूरी नहीं है इतना ज्यादा पढ़ना शुरू। और बाकी जो इंटर्न वगैरह बाकी होती हैं, उनके लिए कब से अप्लाई करना चाहिए? आवाज अह, कटी हुई है। हाँ मुझे भी समझ नहीं आया क्या बोला। I think he is asking कि internship वगैरह के लिए कब apply करना चाहिए and everything, and he is saying second year interns की शायद बात कर रहा है, right? कि second year में जो internships होती हैं, ओह। जो college internships होती हाँ हैं जी, हाँ जी, besides that, right? हाँ जी। कर सकते हो, you can. I think DSA वाली जो चीज है, it is मतलब आप भूल जाओगे जैसे ही छोड़ोगे। उसके 3-4 महीने तो काफी कुछ आप भूलने लगोगे उसमें से, राइट? तो डीएस से यू कैन जस्ट कीप ऑन डूइंग, थोड़ा थोड़ा कर लो, एक दो क्वेश्चन ऐसे कि जब आप दोबारा रीस्टार्ट कर रहे हो डर नहीं लगना चाहिए कि आप एकदम से ही स्टार्ट कर रहे हो। बिसाइड्स दैट आई थिंक प्रोजेक्ट्स आर गुड, मतलब अभी स्टार्टिंग में अगर आप प्रोजेक्ट्स करोगे दोज आर गुड। फिर वही लैंड करवाएगा किसी इंटर्नशिप में, बिकॉज यू विल बी कॉन्फिडेंट कि हाँ यू नो कैसे प्रोजेक्ट्स बिल्ड होते हैं, या आप कुछ तो बना सकते हो जो कि एक कंपनी को एक्चुअली चाहिए। क्योंकि जो भी इंटर्नशिप सेकेंड ईयर में देता है जनरली दोज आर नॉट बिग कंपनीज। बिग कंपनीज में कुछ कुछ प्रोग्राम्स होता है, आई थिंक ऊबर सी प्लस प्लस और समथिंग ऐसा कुछ होता है, राइट? बट वो एनीवेज लड़कों के लिए तो नहीं होता। तो लाइफ इज टफ, सो एम आई। बट हाँ, उसके अलावा यही है, आप प्रोजेक्ट्स करोगे तो काफी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फिर आप लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो लोगों को, मे बी कोई सीनियर ही लैंड करवा दे किसी स्टार्टअप में आपको कोई छोटी मोटी इंटर्नशिप। इट इज गुड, मतलब पहले से सोचना। बट हाँ, फिर उसके लिए प्रोजेक्ट्स पे फोकस करो और
DS से you can keep on doing 2-4 videos या दो क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस डेली ऐसा कुछ. प्लस शुरू में प्रोजेक्ट्स मतलब फर्स्ट ईयर में तो ऐसे बनते थे कि शायद कॉप्स भी का आएगा, एक कॉप्स का एक और इवेंट आता है, कुछ कंट्रोल शिफ्ट इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह, उधर टेक्निक्स में पार्ट लोगे, वो सब मतलब जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होते हैं वो प्रोजेक्ट वर्दी ही होती है, तो वहां से प्रोजेक्ट बन जाएंगे, एक्सपोजर भी आता है, तो तुम अगर कॉप्स में हो गए तो उसके बाद तुम्हें काम देंगे वैसे टाइप का सिस्टम. तो हाँ, तो इन चीजों का तुम ज्यादा ट्राई कर सकते हो कि तुम्हारे सोशल सर्कल ही वैसा बन रहा है जैसा तुम्हें चाहिए. यू कैन ट्राई कर फिर इंटर आइडिया. तो अप्लाई कब करना होता है वैसे? जैसे फर्स्ट ईयर के बाद समर वेकेशन आएंगे, फिर उसके बाद मतलब करना कब होता है एक्चुअली ये सब स्टार्ट? When you feel confident, अगर आप कॉलेज के प्रोसीजर से नहीं जा रहे हो तो when you feel confident enough कि हाँ you can make projects, एक आध प्रोजेक्ट 2-3 प्रोजेक्ट में भी बना लिए छोटे छोटे, then you can start applying, you can start reaching out कुछ हाँ. सीनियर्स को and everything. हाँ मतलब भाई जब जान से तुम्हारा मेरे को रेज्यूमे बनना चालू हो. हाँ जब वही तो तो मतलब बट अदरवाइज लाइक मतलब मैं ये सजेस्ट करूंगा, आई एम मिस्ड आउट ऑन जी सॉक और ये सब इन माय इनिशियल ईयर्स. तो अगर तुम जी सॉक, समर ऑफ बिटकॉइन, एलएफएक्स इन सब में मतलब कर पाते हो कुछ, या यू यू गेट इनटू दीज, तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा. But otherwise, I have tried मतलब approaching many people on LinkedIn in my second year, third year. But ना वो लोग कुछ बोल के कुछ करवाते types internship ज़्यादा होती है. मतलब they'll tell you कि okay we are hiring you as an SD intern या ये वो, but they'll make you do some random things. और उनको मतलब बेसिकली अपना काम निकलवाना होता है टाइप्स. तो इफ़ यू आर वेरी श्योर ऑफ थिंग्स कि इस कंपनी में ये जो इसने काम बोला है वही होने वाला है, देन गो अहेड, बिल्कुल कर सकते हो. बट अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि जी सॉक, समर ऑफ बिटकॉइन, एलएफएक्स इन सब पे ज़्यादा फोकस करो रादर देन रैंडमली अप्लाइंग. चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो सीनियर्स को रीच आउट करके मिल जाता है, स्पेशली इन योर फर्स्ट सेकेंड ईयर. ध्यान कम देते हैं. मतलब अगर कोई आके अप्रोच करेगा भी किसी स्टार्टअप फाउंडर को, तो वो भी सोचेगा अरे अभी तो फर्स्ट ईयर में है, कैसे इतना ज़्यादा आएगा टाइप्स. भैया दीक्षा को भी कुछ डाउट है, उसने भी हैंड रेज किया था, हाँ. तो शी कैन जस्ट कंटिन्यू आस्किंग उसको जो भी डाउट है. यस. हेलो. हाँ. जी दीक्षा, आपकी वॉइस आ मुझे रही है. ये डाउट था कि लाइक फर्स्ट ईयर में कौन से रिसोर्सेज यूज करके हम लाइक मुझे सी प्लस उसमें डीएसए करना है, तो कहाँ से रिसोर्सेज लाइक यूट्यूब और प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं? I think fully clear नहीं हुआ मुझे, एटलीस्ट एक बार रिपीट कर सकते हो Like, क्या? I think I got her question. Her question is कि अगर फर्स्ट ईयर में C++ में डीएसए स्टार्ट करना है, तो what is the मतलब what are the different resources which can be used? तो like C++ when I started in my first year का second semester or something, तब I was doing it from Code with Harry, क्योंकि तब मेरे को एक ही प्लेलिस्ट पता थी, तो वो कर सकते हो. बट अदरवाइज एवरीथिंग इज मतलब मोर ऑन की ना, तुम जैसे जैसे सीख रहे हो वैसे वैसे उसको अप्लाई करना सीखो. ये सब वीडियोस देखने से क्या होता है ना कि तुम एक बार वीडियो देख लेते हो, तुम्हें कुछ आधा समझ आता है एंड कुछ नहीं आता है, तो वो बीच में गैप टाइप्स क्रिएट हो जाता है. तो आई से कि अगर बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे हो अभी, तो कोड विथ हैरी का अच्छा है. एंड इसके अलावा लव बब्बर की भी एक बहुत बड़ी सी वीडियो वाली वो है, प्लेलिस्ट है, उसमें भी उसने बेसिक से स्टार्ट किया है आई थिंक. मेरे एंड देन हिसाब से फिर उससे मतलब जब डीएसए भी मूव करना होता है, क्या उससे डीएसए पे कैसे मूव कर. वो उसने बना रखी है प्लेलिस्ट, लेकिन एनी ऑफ द प्लेलिस्ट अगर तुम जाओगे तो यू विल सी मतलब एक एक करके एरेज आ रहा है, फिर धीरे धीरे करके ऐसा वेक्टर स्टैक सब कुछ आता है. तो आई थिंक कर सकते हो, उसी में प्लेलिस्ट में कोई भी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो. एंड फॉर प्रैक्टिस लाइक कौन कौन से रिसोर्सेज अच्छे हैं फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करने के लिए? बिकॉज अभी शुरू शुरू में कुछ ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो लाइक मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट देते हैं, तो अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन से वाले जिसमें अलग अलग सेग्रीगेटेड टॉपिक्स भी होंगे?
आई गेस मतलब मतलब स्टार्टिंग के लिए तो वो यूसाको गाइड काफी अच्छा लगता है, मतलब इन द सेंस उसमें काफी ज्यादा अच्छे से टॉपिक्स डिवाइडेड भी हैं, और उसमें रिसोर्सेज है कि तुम ऐसे पढ़ के समझ जाओगे। वरना मतलब मेन वही है कि शुरू में CSO 101 वाला सी वाला कोर्स होता है, उसमें तुम्हें एरे वगैरह समझ में आ जाता है। तुम्हारे को स्टार्ट करना होता है, पहली प्रॉब्लम तो हेलो वो एरे वाली ही होती है बेसिक सी, तुम वहां से ही स्टार्ट कर सकते हो। मतलब मेरे को भी जितना ध्यान है, मैंने शायद CF पे पहली एरे की 800 या 700 वाली प्रॉब्लम सॉल्व करी होगी, और उसके लिए कुछ और प्री रिक्विजिट भी नहीं होता CSO 101 के अलावा। इट्स अ डिसेंट इनफ स्टार्ट। और डेटा स्ट्रक्चर पे एज इन तुम जब करते रहोगे तो तुम्हें तुम्हें पता भी नहीं लगेगा तुमने कब स्टैक सीख लिया, कब क्यू सीख लिया। वो इतना कॉमन रहता है, मतलब कॉन्टेस्ट के थ्रू तुम जाओगे, तुम्हें पता लगेगा ओके यहाँ पे स्टैक यूज होना है, तुम थोड़ा सा देखोगे, थोड़ा सा सॉल्व करोगे, फिर इवेंचुअली तुम्हारे को वो डेटा स्ट्रक्चर खुद से समझ आ जाएगा। ऐसे कुछ खतरनाक चीज नहीं, टीपी ग्राफ तुम खुद से अलग से सीख, बट वो बहुत बात की। भैया भैया और जस्ट मैं एक जैसे चीज नाम क्या पूछना बोला चाहता था? हूँ कि मैं जस्ट भेज रहा एक मैं सेकंड भेज दीक्षा और जस्ट एक चीज, अगर किसी थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर को कुछ डाउट है, क्योंकि उनका अभी रिसेंटली प्लेसमेंट्स एंड उनका इंटर्न का है, तो अगर उनको कुछ डाउट है पहले वो क्लियर कर लें, फिर आप पूछ सकते हो, जस्ट अगर उनको कोई कुछ डाउट है तो। एनीवन? फिर किसी ने तो वो पूछा था इंटरव्यू वाला एक्सपीरियंस, यस। हाँ, यश ने। फिर दोबारा पूछोगे वो क्वेश्चन? आप इंटरव्यू बता के दीजिए ना, लिए आपका इंटरव्यू डे कैसा जाता था, मतलब जिस दिन इंटरव्यू होता था, आप लोग एक एक दिन में दो दो तीन तीन इंटरव्यूज भी मे भी दिए थे, तो वो ज्यादा ही स्ट्रेसफुल हो जाता है या डिपेंड करता है, कुछ बैलेंस करके आप चलाते थे, कैसे वो होता था? यार मेरे केस में आई वोंट बी एबल टू हेल्प मच, क्योंकि प्लेसमेंट के इंटरव्यूज में मेरा तो पहला ही था यार। मेरा भी मेरे लिए सेम था। फर्स्ट इंटरव्यू था और हो गया था एनीवेज कैसे ना कैसे करके। बट मैंने जितना क्लोजली ऑब्जर्व किया है लोगों के लिए, थोड़ा इट बिकम्स हैक्टिक, क्योंकि आप रिजेक्ट भी होते रहते हो, और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि दो कंपनीज में एक साथ चल रहे हैं डे वाइज। सो फॉर एग्जाम्पल, डे 0 की जितनी कंपनीज होंगी आप उसमें सबसे पहले करोगे, देन डे 1 की जितनी कंपनीज होंगी उसमें साइमल्टेनियस ही चल रहे होंगे जितने भी शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन योर शॉर्ट लिस्ट एज वेल कि कितनी आपकी शॉर्ट लिस्ट आई है और आपने कितना चूज किया। आई थिंक इंटरव्यू के लिए कुछ एक लिमिट होती है, राइट? कि आप एक दिन में दो कंपनीज या तीन, आई थिंक ऐसे कुछ लिमिट होती है स्लॉट वाइज, यस। हाँ, स्लॉट वाइज। यस, करेक्ट बेबी। तो देयर इज अ स्लॉट। जी। तो मे बी अक्षुन सिमर बता सकते हैं वो ज्यादा क्लोजली, मैं तो भूल गया हूँ थोड़ा थोड़ा। इंटरव्यूज की लिमिट शायद जितना मुझे याद 3 या 4 होती है, 4 हाँ, जितना मुझे ध्यान है। अब विद इन अ अगर तुम स्लॉट। एक, हाँ, विद इन अ और स्लॉट, एक यस। स्लॉट में अगर तुम 4 दे रहे हो, 4 देने के लिए भी तुम्हारा ये होगा कि पहली कंपनी ने राउंड 1 में भगा दिया, दूसरी कंपनी ने भी राउंड 1 में भगा दिया, तीसरी ने भी राउंड 1 में भगा दिया। ऐसी स्टेट नहीं ही आती इन जनरल। और अगेन हाँ, पैनल में शायद स्लॉट 0 के आगे कोई आगे बढ़ा भी नहीं था। तो स्लॉट 0 में तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है कि इंटरव्यूज काफी ज्यादा लाइन अप रहते हैं, काफी कंपनी का रहती है। और इंटरव्यू जितना मैंने देखा था और मेरे को फील हुआ था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल था मेरे लिए तो एटलीस्ट। कि मतलब मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, मतलब 30 नवंबर को ही हो गया था, जितना, हाँ 30 नवंबर को इवनिंग 12 to 5 मेरा एक इंटरव्यू हो चुका था। 2 राउंड उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। फिर मैं तो ऐसे सो गया था 1 घंटा कि भाई मूव ऑन। और उसके बाद रात के 11 बजे के आसपास उन्होंने बुला लिया था, और वहां पे बहुत सारी कंपनीज के चल रहे थे इंटरव्यूज। मैं 2 कंपनीज का पैरेलली दे रहा था, एंड अगेन इट वाज वेरी मच मेसी। और उस टाइम तुम्हारी इतनी ज्यादा पट रखी होती है कि तुम्हें जो आ रहा होता है वो भी तुम ऐसे मटर करके निकाल रहे होते हो, स्टार्टर बहुत ज्यादा कि या ओके। तो मतलब बहुत ज्यादा बुरा हाल होता है। तो फॉर दोज टाइम्स आई गेस तुम्हारे दोस्त जो हैं, जो सॉर्टेड हैं, तुम उनकी हेल्प काफी ज्यादा ले सकते हो। एंड थ्रू आउट द प्लेसमेंट टाइम मैंने बहुत ज्यादा उनको यूज किया है, मैं तो बोलूंगा। मतलब दोस्तों से ऐसे खाना मंगवा लिया था, मेरे एक दोस्त से मैंने ऐसे 4-5 स्टिंग की बॉटल्स और 10 हाइड एंड सीक मंगवा लिए थे कि भाई अब DG2 जा रहा हूँ 2 दिन बाद ही आ। तो
वो सब सीन था। तो यू कैन डेफिनेटली टेक अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम योर सॉर्टेड फ्रेंड्स, और दोस्त रुकते भी हैं कि बाकी जूनियर से दोस्तों भी ने। ले लो, हाँ जूनियर्स को भी रोक के रखो। हाँ बिल्कुल। तो वो सब उधर तुम्हारे लिए काफी स्ट्रेसफुल होगा, बट तुम्हारे दोस्त होंगे जो तुम्हारी हेल्प कर देंगे, दोस्त जूनियर सब लोग, सीनियर्स भी। तो यस। आई रिमेम्बर पीपल स्टेड ऑल्सो ना, मेरे केस में काफी सारे लोग तो घर जाने वाले थे बट तब भी रुके थे ताकि सबके प्लेसमेंट्स तक किसी को हेल्प चाहिए। मैं भी इनफैक्ट मेरे होने के बाद में रुका था काफी दिन तक, आई थिंक 15th या 20th दिसंबर तक हम लोग रुके थे। ऑल्दो आप चले जाते हो 12th 10th तक, सब लोग चले जाते हैं फिनिश करके, है ना, रैप अप। ऑल्सो अगर आपका डे 0 1 2 में नहीं भी होता है, जो स्टार्टिंग के डेज होते हैं, तब भी बाद में भी आई हैव सीन कंपनीज आती हैं एंड दे आर एवरेज कंपनीज, ठीक है, मतलब मे बी 20 से कम रहेगा उनका एलपीए, बट ठीक है, इट इज फाइन। मतलब ऐसे नहीं है कि आप 0 1 2 3 जितने भी आई थिंक डेज होते हैं, तो उसमें अगर नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाओ। मतलब इट फील्स डीमोटिवेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एक मेरा दोस्त था, उसने 12 कंपनीज के इंटरव्यू दिए थे और 12 के 12 में रिजेक्ट हो गया था। सो इससे वर्स आई हैवंट सीन एनी केस 12 कंपनी से रिजेक्ट होना, है ना, इंटरव्यूज में, बट स्टिल ही लैंडेड इन गूगल। तो क्या दिक्कत है, उसने आउट ऑफ कैंपस अप्लाई किया, गूगल में लैंड कर लिया। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सब वहीं डिसाइड हो रहा है, बहुत और भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। फॉर एग्जांपल जनवरी में आई थिंक सेल्स फोर्स आता है, राइट, इफ आई एम करेक्ट। मतलब वो ऑफ कैंपस हुआ था आपके ऑफ टाइम पे? कैंपस आता है ना। हाँ हाँ। और हमारे टाइम पे ऑफ कैंपस उबर का हुआ था जनवरी के आसपास, जनवरी नहीं शायद बाद में, और अमेजोन का बहुत ज्यादा चल रहा था। करेक्ट, तो होता है, मतलब यू कैन गेट वहां पे भी। तो बहुत ज्यादा डीमोटिवेट नहीं होना सबसे पहले तो, और वही है जयराम जी की बोलना है, मतलब आपने कर दिया ऑलरेडी जितना करना था, इसके बाद तो भाई आप लोग क्या कर सकते हो ना, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हम लोग। तैयारी कर सकते हैं, फिर अब मान लो कोई कंडीशन है मार्केट की ऐसी, जो कंपनी 10 हायर करती थी वो 1 2 करके जा रही है, तो इस कारण से ओवरऑल प्लेसमेंट नहीं लग रही लोगों की, तो हम नहीं कर सकते उसमें मेजरली कुछ ना। तो यू हैव टू मतलब बी रेडी, उसके लिए भी हो सकता है। तो ठीक है, यू हैव टू जस्ट कीप ऑन फॉलोइंग द प्रोसेस, यही प्रोसेस है, वही करना है आपको, सिमिलर चीजें वही देने हैं, इंटरव्यू देने हैं, देते रहो, बाहर अप्लाई करना चालू कर दो, बट हो ही जाएगा एक ना एक दिन। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा। जी भैया, भैया हम एंड करते हैं, टाइम कंस्ट्रेंट है थोड़ा। तो because of the this was a very insightful session, and thanks to our seniors for such wonderful insights and giving us their precious time. Now I would like to present them a memento, जिससे कि online memento to our seniors, as they have given their wonderful time to us, and we got a very great insight. मैं तो So भूल गया था ये। भैया आपको दिख रहा है? हाँ, यस। अब आ गया। रुको रुको 1 मिनट, पूरा स्क्रीन एंड है। भैया आपको दिख रहा है? Yes. हाँ, दिख रहा है। So this is presented to Mr. Akshan Mishra as a token of our gratitude and appreciation for the valuable time for sharing profound insights on acing placements session of software development hosted by Career Council SCS IIT BHU. Thank you भैया, आपने हमें इतना अच्छा चीजें समझाया, सब अच्छे से बताया। Then this is presented to Mr. Simarpreet Singh as a token of gratitude and appreciation for his valuable time and for sharing profound insights on the acing placements software development sessions hosted by the Career Council. Thank you भैया, आपने जो भी मेरे को भी बहुत अच्छे से गाइड किया, मेरे को भी बहुत चीजें नहीं पता चली आप लोगों की वजह से।
and also this is also Wait. presented to Mr. जाने भाई दोबारा मत बोलना, हो गया भाई मैं उसकी लाइन प्रेडिक्ट कर पाऊंगा क्या बोले। हाँ भाई डन हो गया डन। अबे ठीक है, आई वुड से स्टे कनेक्टेड, किसी को कभी डाउट्स हो आप लिंक्डइन पे रीच आउट कर जी लो। जी भैया, मैं कनेक्टेड रहूंगा। अभिनव का कुछ मैसेज आया है। नहीं, अभिनव भैया ने आपको भेज दिया होगा। ठीक है देन, आई थिंक आई विल जस्ट ड्रॉप फिर अभी। थैंक यू गाइस, जी थैंक यू भैया, गाइस। just एक मिनट, just we hope the session provides you with clarity and एक मिनट, just थोड़ा बड़ा कर दूं बस। हाँ, भाई we व्हाट्सएप hope दिख the रहा session provides, हाँ हाँ इसीलिए बड़ा कर दिया ना, बंद कर दिया। है। We hope the session provided you with clarity and confidence in approaching placements and interview. Remember, preparation is a journey. Stay consistent, stay curious, and seek guidance whenever needed. Success is the sum of small efforts repeated day in and day out, as said by Robert Collier. Thank you for joining us today. On behalf of Student Counseling and Services and the Career Council, I wish you a very best in the journey and very best, all the best for your placement session. Thank you, Via. Thanks everyone. बाय। Thank you, भैया. Thank you, Akshan भैया. Thank you, Akshan. Bye. Bye. For having Thank you, me. Simar भैया. थैंक यू अक्षन सिमर। Thank you, Akshat Bhaiya. Thank you, Subar. Bye. Thanks Akshan. Thanks Akshan. Thanks. Bye bye. And thanks. Thank you, भैया. Welcome, भैया. सही है। अब तुम लोग आगे शायद ग्रुप बनाते हो, कुछ ऐसा होता है ना? Not such as a group, but वही थोड़ा देखते हैं कि सबको क्या समझ आया क्या नहीं. Just स्क्रीन शेयर बात बंद कर कर दो लीजिए. भाई। हाँ अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सॉरी भैया, वो बंद नहीं हुआ है. हाँ सॉरी भैया. थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत नई नई चीजें पता चली. मैं खुद सेकेंड ईयर में हूँ ना, तो मेरे लिए ये सब हाँ। अलग ही चीज है. फर्स्ट ईयर में मैंने ये सब नहीं किया था. फर्स्ट ईयर में बस आ रहा है, बैडमिंटन खेलने जा रहा है, जो भी पेस्ट है उसमें अप्लाई कर दो, जाओ MUN करो, ई-सेल करो, ये सब चल रहा था. अभी चले थोड़ा भाई। सीरियस में धीरे धीरे. हाँ, मैं भी PR कलेक्टर था भाई फर्स्ट ईयर। भैया आप TPC में थे? नहीं यार, मैं नहीं था, मेरा दोस्त था। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ. हाँ वही है। सही रहे, चिल रहे, मतलब पढ़ लेना बस, उसके बाद हाँ चिल। अभी तो पढ़ाई करेंगे भैया, पढ़ाई अच्छे से करेंगे. थैंक यू भैया. सर ठीक, बाय बाय। जी बाय. भैया सही था, अभिनव भैया, सुरेन भैया.